اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے سالار ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹتا جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، میں ہوں ابن ولید، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ ہربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک رومی اپنے سالار ہربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی خود پر پڑی۔ خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا دھاڑتا اور خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو وہ اپنے ہی زور سے گھوم گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اچھل کر اس پر چھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجا سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور ہربیس کو للکارا، لیکن ہربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ بڑے مسرور لہجے میں کہا، ابو سلیمان، خدا کی قسم تو نے جو کہا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 636 عیسوی، صفر 15 ہجری، مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر خوف و ہراس طاری تھا۔ وہ اس وقت بھگدڑ اور نفس نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال اور اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ
पहुँच कर उन पर हमला किया। इस मार्के में रूमियों के सिर्फ 100 सवार जिंदा बचे थे और मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद 235 थी। इतनी खूरेज लड़ाई लड़कर मुसलमानों ने हम्स को फतह किया था। हम्स वालों ने जब ये देखा कि उनके वो 5000 सवार मुसलमानों के ताकुब में गए थे, उनमें से बहुत थोड़े भागते हुए वापस आ रहे हैं, तो उन पर खौफ व हरास तारी हो गया था। और जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का एक सवार दस्ता रूमियों और हम्स के दरवाजों के दरमियान आ गया है और रूमी सवार न भाग सकते हैं न शहर में दाखिल हो सकते हैं, तो वो और ज्यादा खौफजदा हो गए। शहर में इतनी फौज नहीं रह गई थी जो उनकी मदद को पहुंचती। ये सवार मुसलमान सवारों की तलवारों और बर्छियों से कट गए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब हम्स में दाखिल हुए तो चंद एक शहरी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दोनों मुसलमान सालारों को देखकर वो सजदे में गिर पड़े। दोनों सालारों ने घोड़े रोक लिए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने गरजदार आवाज में कहा, उठो, खड़े हो जाओ। वो सब सजदे से उठकर खड़े हो गए। उन सब के चेहरों पर खौफ व हरास और रहम तलबी का गहरा तासुर था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बोलो, अगर तुम्हारी फौज हमारे कहने पर पहले ही हथियार डाल देती तो तुम्हें हमारे आगे सजदा करने की जरूरत न पड़ती। एक ने इल्तिजा की, हम रहम के तलबगार हैं। वो रूमी फौज थी जो आपसे लड़ी है, हम रूमी नहीं, हम आपका हर मुतालबा पूरा करेंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे किया जाता है, हम किसी को अपना गुलाम बनाने नहीं आए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से हम्स के लोगों से सिर्फ 1 दीनार फीकस जिजिया लिया गया और मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई शख्स शहर छोड़कर न जाए। शहर के लोगों के जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। इस ऐलान ने लोगों को हैरत में डाल दिया। बाज इसे मुसलमानों की चाल समझे। वो रात भर इस खौफ से जागते रहे कि मुसलमान रात को उनके घरों पर टूट पड़ेंगे, लेकिन रात गुजर गई और कुछ भी न हुआ। रूमी शहंशाह हरकल हम्स से तकरीबन 80 मील दूर अंताकिया में था। उसे जब खबर मिली कि हम्स भी हाथ से निकल गया है तो उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया, जैसे वो इसी खबर का मुंतजिर था। उसके सालार मुशीर और शाही खानदान के अफराद ये जानते थे कि हरकल का ये तबस्सुम मौत की मुस्कुराहट है और इस तबस्सुम में कहर भरा हुआ है। हरकल ने खबर लाने वाले से पूछा, क्या तुम ये बता सकते हो कि अरब के उन मुसलमानों ने हम्स किस तरह लिया है? तुम सालार तो नहीं, कमानदार हो, जंग को समझते होगे, तुम्हारा नाम क्या है? खबर लाने वाले ने कहा, सब समझता हूँ, कैसर रूम, मेरा नाम साजेरस है, एक जैश का कमानदार हूँ। हम्स एक धोखे ने हमसे छीना है। हमारे सालारों को तवक्को थी कि मुसलमान इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और महासरा उठाकर चले जाएंगे। उन्होंने सर्दी की शिद्दत महासरे में गुजार दी और महासरा उस वक्त उठाकर चले गए जब सर्दी की शिद्दत गुजर गई और दरख्तों की कोंपलें फूटने लगी। हरकल ने कहा, और हमारे सालार उस वक्त कले में बैठे रहे जब दुश्मन बाहर सर्दी से ठिठर रहा था। हमारे सालार दुश्मन पर उस वक्त न झपटे जब सर्दी ने उनकी रगों में खून मुंजमिद कर दिया था। फिर क्या हुआ? साजिरस ने कहा, कैसर रूम, जब वो कूच कर गए तो सालार हरबीस ने 5000 सवारों के एक दस्ते को हुक्म दिया कि मुसलमानों के ताकुब में जाओ और उनमें से कोई एक भी जिंदा न रहे। हम उनके ताकुब में गए। जब हम उनके करीब गए तो उन्होंने पलटकर हमें घेरे में ले लिया। साजिरस ने हरकल को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें किस तरह घेरे में लिया और उनके सवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। हरकल ने पूछा, हमारा सालार हरबीस कहाँ है? क्या वो? साजिरस ने कहा, वो जिंदा है। वो उस वक्त वहाँ से निकल गए थे जब मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद ने हमारे एक पहलवान को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और पहलवान की आंखें बाहर आ गईं। हरकल ने पूछा, क्या हमारे पहलवान को खालिद बिन वलीद ने मार डाला है? साजिरस कुछ देर हरकल के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर उसने दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। साजिरस ने कहा, मुसलमान सालार ने हमारे पहलवान को बाजुओं में दबोचकर उसकी पसलियां तोड़ डाली और वो मर गया। हरकल के होंठों से सरगोशी फिसल गई। आफरीन, ये ताकत जिस्म की नहीं। वो अचानक जैसे बेदार हो गया हो। उसने जानदार आवाज में कहा, मैं उन्हें कुचल दूंगा, उन्हें और आगे आने दो, और आगे जहाँ से वो भाग नहीं सकेंगे। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और आगे चले गए थे। उन्होंने हम्स के इंतजामात किए। कुछ नफरी वहाँ छोड़ दी। हमसे वो अपने दस्तों के साथ हमसे आगे हमा, फिर उससे आगे शिर्स तक जा पहुँचे। वहाँ से अंताकिया का फासला 35-40 मील के दरमियान था। अंताकिया अहम तरीन मकाम था क्योंकि उसे हरकल ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं रूमियों की फौज का इज्तिमा और फौज की तकसीम हुई थी। मुसलमानों ने शेरस से कूच किया। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि रूमियों का एक काफिला सा आता नजर आया। उसकी हिफाजत के लिए रूमी फौजियों का एक छोटा सा दस्ता था। इससे जाहिर होता था कि ऊंटों और गाड़ियों के इस काफिले में फौजी सामान जा रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर मुजाहिदीन ने काफिले को घेरे में ले लिया। रूमी फौजियों ने मुकाबला करने की हिमाकत न की। उन्होंने बताया कि ये फौज
फौज के खाने पीने का सामान है, उसमें हथियार भी थे। उन सबको पकड़ लिया गया और उन्हें ये तासुर दिया गया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उस रूमी फौजी काफिले के कमांडर ने जान बख्शी की इल्तिजा करते हुए कहा, हमने आपका मुकाबला नहीं किया, हम रूमी नहीं, हम तो रियाया हैं, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। उन्हें कहा गया, फिर दोस्ती का सबूत दो, ये बता दो कि अंताकिया में क्या हो रहा है। काफिले के कमांडर ने जवाब दिया, आपकी तबाही का सामान तैयार हो रहा है, वहाँ बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की जा रही है, दूर दूर से ईसाई कबीले आपके मुखालिफ लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं और उन्हें मैदान जंग में लड़ने के ढंग सिखाए जा रहे हैं। काफिले के एक और आदमी ने कहा, आपने हमारी जानें हमें वापस कर दी हैं, तो हम आपकी जानें बचाते हैं, आप आगे न जाएं, आपकी नफरी बहुत थोड़ी है और अंताकिया में शहनशाह हरकल जो फौज इकट्ठी कर चुका है वो इतनी ज्यादा है कि आपका एक आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा। मुसलमानों के एक सालार ने पूछा, क्या इतनी ज्यादा शिकस्तों ने उसकी कमर अभी तोड़ी नहीं? रूमियों के कमांडर ने कहा, हम इतने बड़े लोग नहीं कि शहनशाह तक रसाई हासिल कर सकें, हम उसके साथ बात करने की जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन अपने सालारों से जो पता चलता है वो आपको बताते हैं। हरकल की कमर इतनी कमजोर नहीं कि चंद एक शिकस्तों से टूट जाए, उसने अपना दिमाग अपने हाथ में रखा हुआ है, उसे पता हासिल होती है तो वो अपने ऊपर उसका नशा तारी नहीं होने देता और शिकस्त से वो मायूस नहीं हुआ करता। वो जो हसीन तरीन और नौजवान लड़कियों और शराब का रसिया है, अब शराब तो पीता होगा लेकिन अपनी पसंदीदा लड़कियों को भी अपने सामने आने नहीं देता। दूसरे ने कहा, वो तो शायद रातों को सोता भी नहीं होगा, उस पर एक जुनून सा सवार है, फौज इकट्ठी करो। उसके आदमी बस्ती बस्ती जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मुसलमान तूफान की तरह आ रहे हैं और वो तुम्हारे मजहब को और तुम्हारी औरतों को अपने साथ उड़ा ले जाएंगे। लोग कबीला दर कबीला मजहब के नाम पर और अपनी औरतों को मुसलमानों से बचाने की खातिर अंताकिया में आ रहे हैं। आपने आगे जाना है तो ज्यादा फौज लेकर आएं वरना रुक जाएं। अब शहनशाह हरकल ज्यादा वक्त नई फौज की तंजीम और तरगत में गुजारता है और कहता है कि मुसलमानों को आगे आने दो, उन्हें और आगे आने दो। एक और ने कहा, उसने ये भी कहा है, मेरी फौज की हर पसपाई अरब के उन मुसलमानों को मेरे जाल में ला रही है। उस काफिले से जो सूरत हाल अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुई वो गलत नहीं थी। पहले जिक्र हो चुका है कि हरकल रिवायती शहनशाह नहीं था, वो अपने वक्त का फन्ने हर्बो ज़र्ब का माहिर जंगजू था और वो मैदान जंग का शातिर जर्नैल था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इन इत्तलात ने जो उन्हें इस काफिले से मिली वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, खुदा की कसम अमीनुल उम्मत, हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे और हम हरकल को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ले। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आज रात तक अपने किसी आदमी को आ जाना चाहिए। अबू सुलेमान, जब तक आगे की मुसद्दिका सूरत हाल मालूम नहीं हो जाती हम आगे नहीं जाएंगे। अपने किसी आदमी से मुराद वो जासूस थे जो अंताकिया तक पहुँचे हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सिपाह सालारी के दौर में जासूसी के निज़ाम को बाकायदा और मुनज़्ज़म कर दिया था और जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। मुसलमान जासूस जान की बाजी लगाकर बड़ी कीमती मालूमात ले आते थे। मौरखों के मुताबिक हरकल ने अपनी फौज की पै दर पै शिकस्तों की खबरें सुन सुनकर इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि वो मुसलमानों को बिखरी हुई लड़ाइयों में शिकस्त नहीं दे सकता। एक शिकस्त तो वो थी जो रूमी फौज को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी थी और दूसरी वो थी जो दूसरे सालार शाम के दूसरे इलाकों में रूमियों को देते चले आ रहे थे। मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने का एक ही तरीका था कि उन्हें किसी एक मैदान में इकट्ठा होने पर मजबूर किया जाए और उनके मुखालिफ उनसे कई गुना ज्यादा फौज मैदान में उतारी जाए। चुनांचे उसने नई और बहुत बड़ी फौज तैयार करनी शुरू कर दी। मुसलमानों ने जब हम्स पर कब्जा किया उस वक्त तक उसकी नई फौज की नफरी 1.5 लाख हो चुकी थी। अंताकिया से 40 मील दूर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ रुके हुए थे। उसके 2 रोज बाद जब उन्होंने रूमियों का काफिला पकड़ा था, मुसलमान मगरिब की नमाज की तैयारी कर रहे थे कि एक घुड़सवार पड़ाव की तरफ आता दिखाई दिया। इतनी दूर से पता नहीं चलता था कि वो रूमियों का कोई फौजी सवार है या कोई मुसाफिर। पड़ाव से कुछ दूर उसने घोड़ा मोड़ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसका लिबास मुसलमानों जैसा नहीं था। किसी कमांडर ने अपने सवारों को हुक्म दिया, पकड़ लाओ इसे। सवार अभी घोड़ों पर जीने डाल रहे थे कि उस अजनबी सवार ने घोड़ा पड़ाव की तरफ मोड़ दिया। उसने नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, और करीब आकर उसने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने परचम को पहचानने की कोशिश कर रहा था। किसी ने कहा इब्ने आहदी और चंद एक मुजाहिदीन उसकी तरफ दौड़े। एक ने कहा खुदा की कसम हम अब भी तुझे रूमी फौज समझ रहे हैं। एक ने पूछा क्या ये लिबास उस रूमी का है जिसे तूने कत्ल किया होगा।
इब्ने अहदी किसी को बता नहीं सकता था कि वो जासूस है और अंताकिया से आया है। वो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के खैमे में चला गया। वो उन 3-4 जासूसों में से एक था जो 1.5-2 महीनों से अंताकिया गए हुए थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे गले से लगाकर कहा, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने अहदी, हम अंताकिया की खबर के इंतजार में बैठे हैं। इब्ने अहदी ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसाफा किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उसे गले से लगा लिया। पूछा, क्या खबर लाए हो? इब्ने अहदी ने अरबों के मखसूस शायराना अंदाज में कहा, स्याह काली घटा है जो अंताकिया के उफक से उठ रही है। उस घटा से जो मेह बरसेगा वो जमीन पर सैलाब बनकर चट्टानों को भी बहा ले जाएगा। अमीनुल उम्मत और इब्ने वलीद, अल्लाह ने तुम्हें इशारा दिया है कि आगे न जाना। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमें ये इशारा दुश्मन के एक काफिले ने दिया है। ये रूमियों का फौजी काफिला है जिसे हमने पकड़ लिया है। इब्ने अहदी ने कहा, इसे अल्लाह का भेजा हुआ काफिला समझ अमीनुल उम्मत। अब पूरी बात मुझसे सुन। अंताकिया के अंदर और बाहर लश्कर के सिपाहियों और घोड़ों के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। अंताकिया के गिरदोनिवाह में दूर दूर तक खैमों का जंगल है जो बढ़ता ही जा रहा है। हरकल ने जो मंसूबा बनाया है वो बहुत खतरनाक है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तेरी खबर मुसद्दिका हो सकती है? इब्ने अहदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हरकल की फौज के एक टोले का कमांडर हूँ अबू सुलेमान। रूमियों की इस वक्त ये हालत है कि जो कोई अंताकिया के दरवाजे पर जाकर कहे कि फौज में भर्ती होने आया हूँ तो उसके लिए शहर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इब्ने अहदी जिस तरह अंताकिया की फौज में शामिल हुआ था उसकी उसने तफसीलात बताई। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना